गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकंड पार्ट को देखने जाएंगे जो था प्रिंसेस सितंबर। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे रिकैपिचुलेशन में कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव रेड दैट देयर वाज अ किंग इन सियाम एंड ही हैड 9 daughters. The queen was fed up and confused in remembering the names of the daughters. That's why they named them according to the month as per seniority. Like the eldest one named as January, the second one February, then March, April, May, June, July, August and September. The September was the 9th girl of of the king. Now the king had one unusual habit, that he used to give away the gifts on his birthday instead of receiving the gifts as the normal people. Like हम लोग क्या करते हैं, अपनी बर्थडे पे गिफ्ट्स लेते हैं, but the king used to give away the gifts to the others. Once there was no gifts handy to the king, so he gifted the 9 parrots to the 9 princes with the golden cage. Now as the time passed, as we used to teach the parrots, these princes also tried their best to teach the parrot to speak. Now their parrots could say Pretty Polly and God Save the King in different languages. One day the parrot of Princess September, the youngest daughter, died. That's why the princess was very upset and she was crying very bitterly. Now on that night, the mother did not give the food, the supper to the Princess September and forced her to sleep without supper. That time, one small bird came inside the room of Princess September and started to sing the melodious song. एक छोटी चिड़िया आ जाती है और बहुत खूबसूरत गाना सुनाती है. The Princess September was delighted, very happy, and in happiness she showed the bird to all her brothers, to her father, mother, to everyone. Now one day, all the rest, the 8 sisters, they put away their evil mind, their dirty mind and played a prank to Princess September. They came to Princess September and said that don't leave your bird free, otherwise he will fly away and he will never return. On that, Princess September was very upset and confused. Now starting with the second portion. It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. अब उनकी बहनों ने क्या किया था, प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में एक बात भर दी थी कि तुम्हारा बर्ड वापस नहीं आएगा. तो आज उसका बर्ड जो गया हुआ था, प्रिंसेस सितंबर को लगने लगा कि बहुत देर हो गई, वो अभी तक आया ही नहीं. जैसे इंतज़ार के पल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं. आपसे अगर कोई कह दे कि ठीक है बाहर रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ, वो 10 मिनट आपको लगेगा जैसे कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार करूँ, क्योंकि आप उसके लिए चिंता करने लगते कब आएगा कब आएगा. उसके बाद अब मन में ख्याल आ रहे हैं, वॉट माइट हैव हैपेंड टू हिम, मेरे बर्ड के साथ क्या हुआ होगा. वॉट विद हॉक्स एंड स्नेयर्स, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चील गिद्ध दूसरे जानवर उसको कोई परेशान कर रहा हो या उसको मार दिया हो. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बर्ड मुझे भूल गया हो या किसी दूसरे के पास वो चला गया हो जैसे मेरे पास वो आ गया था. दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये बड़ा ही भयानक डरावना सा था. ये एहसास ही बड़ा डरावना था कि वो मुझे भूल गया, वो वापस नहीं आएगा. शी विश्ड ही विल सेफ्टी बैक अगेन, और वो कामना करती है कि वो सही सलामत वापस लौट आए.
Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तभी अचानक उसके कान में मधुर आवाज़ आती है ट्वीट ट्वीट की और वो मुड़कर देखती है वो बर्ड उसके कंधे पे बैठा हुआ है. He had come in so quietly and alighted so softly that he had not heard him. अब वो जो बर्ड था वो इतने धीमे से आया था अंदर कि उसको किसी ने आते हुए सुन ही नहीं पाई और प्रिंसेस सितंबर अपने ख्यालों में खोई हुई थी. I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस कहती है कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है. I thought you would wonder that, said the little bird. लिटिल बर्ड कहता हाँ मुझे लग ही रहा था कि आप मेरे बारे में चिंतित हो रहे होंगे. The fact is I very nearly did not come back tonight at all. अब वो बर्ड कहता है कि अब असल बात तो ये है कि आज तो मैं आने ही वाला नहीं था. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay but I thought you would be anxious. वो बताया कि आज मेरे ससुर जी एक पार्टी दे रहे थे और वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ रुकूं, लेकिन मुझे पता था कि आप परेशान हो रहे होगे इसलिए मैं चला आया. Now, under the circumstances, this was very unfortunate remark for the little bird to make. लेकिन अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग जो बर्ड का रिमार्क था कि I was very nearly did not come back tonight at all. आज तो मैं आने वाला ही नहीं था. ये जो रिमार्क है ये यहाँ पे गलत समय पे हो गया क्योंकि अभी प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में क्या चल रहा था. उसकी बहनों ने बताया था कि वो वापस ही नहीं आएगा. प्रिंसेस सितंबर भी सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे के पास चला गया मेरे पास ना आए. और यहाँ उसने ये जो रिमार्क कर दिया ये उसके लिए गलत समय पे गलत बात उसने कह दी. क्या कह दिया? आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल. आज तो मैं आने ही वाला नहीं था. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more rest. अब ये सुनकर प्रिंसेस सितंबर का दिल जो है जोर से धड़कता है और एक बार जैसे कहते हैं दिल बैठ जाना, एक झटका सा महसूस होता है और वो इस बात का निश्चित करती है कि अब मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगी. She put up her hand and took hold of the bird. तो उसने क्या किया? हाथ बढ़ाया और चिड़िया को पकड़ लिया. The bird suspected nothing as he was so surprised when she carried him over to cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. अब जो बर्ड था उसको कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि उसने उसको पकड़ा और एक पिंजरे के अंदर डाल करके बाहर से गेट बंद कर दिया. वो इतना सरप्राइज था कि वो कुछ कह ही नहीं पाया. बहुत जल्दी में सब कुछ हो गया. बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक. अब उसके बाद उसके अंदर आइवरी एक पेड़ होता है उसका एक पर्च लगा हुआ था. कल आपको बताया था पर्च का मतलब क्या होता है? एक डाली जैसी चीज जिसके ऊपर चिड़िया बैठती है, दैट इज कॉल्ड पर्च. तो एक दो पल जब बीते, जब उसको अपना होश में होश आया तो उसने उस आइवरी पर्च पे चढ़ कर बोलता है व्हाट इज द जोक. ये कैसा मजाक है? देयर इज नो जोक सेड सितंबर बट सम ऑफ ममा's cat are prowling about tonight and I think you are much safer in there. अब यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर बहाना बना देती है. वो कहती है कि नहीं ये कोई मजाक नहीं है. आज मेरी मम्मी की कुछ बिल्लियाँ यहाँ म्याऊ म्याऊ कर रही है, इधर उधर घूम रही है, तो मुझे लग रहा है कि आज तुम इसके अंदर सेफ रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. अब बेचारा जो चिड़िया है वो बड़ा सीधा साधा भोला सा. वो कहता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो एक दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बंद कर दो अंदर, लेकिन सुबह जैसे हो मुझे छोड़ देना, मैं बाहर निकलूँगा. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग. अब उसके बाद उस चिड़िया ने रात में खाना खाया और गाना गाना शुरू करता है. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. लेकिन गाना पूरा भी नहीं हुआ और बीच में ही वो रुक गया. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. कहता है
कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन आज रात में गाना नहीं गा पा रहा हूँ। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टीड। प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि कोई बात नहीं, अगर गाना नहीं गा पा रहे हो तो आज सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। तो अब उसने क्या किया, अपने पंखों के नीचे अपने सिर को छिपाया और 1 मिनट के अंदर ही वो सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर भी जाके सो जाती है। बट वेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, डॉन का मतलब क्या होता है, सुबह का जो भोर जिसको कहते हैं, जिस वक्त ना पूरी तरह से उजाला हो ना पूरी तरह से अंधेरा हो, वो टाइम जिस टाइम आप पीटी के लिए निकलते हैं, ना पूरी तरह से अंधेरा होता है ना पूरी तरह से उजाला होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन। तो जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई, वो बर्ड अपने सबसे ऊंची आवाज में चीख चीख के चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है, वेक अप, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। उठो, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। ये जब तक ज़मीन पे ओस गिरी हुई है, इसके सूखने के पहले मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। अब सेप्टेम्बर अपने असली रंग में लाती है और कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं बेहतर हो। बट लेट मी आउट। वो चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही couldn't open it. अब जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, तो वो उसके बार्स यानी उसमें जो सरिया लगी हुई है उससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब पिंजरा है तो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पा रहा है। वो दरवाजे पे धक्का देने की कोशिश करता है कि दरवाज़ा खुल जाए, पर नहीं खुलता। देन द 8 princesses came in and looked at him. तभी उनकी 8 बहनें आ जाती हैं और उसको देखती हैं। They told September she was very wise to take their advice. कहती है तुम तो बड़े समझदार हो, तुमने हमारी बात मानी। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. और उसको वो क्या सलाह देती है कि बहुत जल्द वो इस केज के लिए अकस्टम्ड हो जाएगा, वो उसका आदी हो जाएगा और वो ये भी भूल जाएगा कि कभी वो आज़ाद भी हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वेयर देयर बट एज सून एज दे वेयर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट। अब उन बहनों की आवाज़ सुन के वो जो लिटिल बर्ड है उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जब वो बाहर गई उसकी बहनें, वो फिर से चिल्लाना शुरू किया, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सेप्टेम्बर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योरसेल्फ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको डांटती है, कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो, मैंने तुम्हें केज में डाला है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे ज़्यादा अच्छा पता है। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, पर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और उसको ऑर्डर करती है, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें चीनी का एक टुकड़ा दूंगी। अब चीनी का टुकड़ा क्या है, यहाँ इस शुगर से मतलब है शुगर क्यूब से। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन वो जो छोटी चिड़िया है वो बस एक कोने में खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा होता है और एक भी गाने का स्वर नहीं गाता। What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? अब वो कहती है गुस्से में आके, ये इस प्रकार से रोना विलाप करना। सल्किंग मीन्स होता है किसी के चिपट करके रोना विलाप करना, सिसकना। जब छोटे बच्चे रोते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी से या पापा से या जिसकी गोद में रहते हैं उसकी गोद को जकड़ लेते हैं और सिसक के रोते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सल्किंग। वो कहते हैं व्हाट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, और व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम अपनी परेशानी भूल कर गाना क्यों नहीं गा रहे हो। How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. अब वो बर्ड कहता है
मैं कैसे गाना गाऊं? मुझे इन पेड़ को, इन नदियों को, इन झरनों को, इन हरे हरे जो खेत हैं, इनको देखना है। जब मैं इनको देखूंगा तब तो। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। वो कहती मैं तुम्हें रोज बाहर घुमाने ले चलूंगी। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं है। तुम पिंजरे में लेकर रोज मुझे बाहर घुमाने ले जाओगी, लेकिन पिंजरे के अंदर बैठकर घूमना और खुद से उड़कर घूमना अलग चीज़ें हैं। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. जब आप एक जाल के अंदर से इन सरियों के बीच से जब देखते हैं तो ये राइस फील्ड्स, ये लेक, ये विलो ट्रीज, ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जब मैं आज़ाद होऊंगा तो ये कुछ अलग दिखाई देंगे। The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. इधर अब वो चिड़िया जो है प्रिंसेस सितंबर उसको आज़ाद नहीं करती, वो उसके लिए गाना नहीं गा रहा और ना ही कुछ खा रहा है। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंग्शियस एट दिस। अब बेचारी प्रिंसेस जो है थोड़ी सी परेशान हो उठती एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब अपनी बहनों से सलाह लेने जाती कि उनका क्या विचार है। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। वो कहते नहीं, तुम्हें अपनी बात पे दृढ़ रहना है। बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। तो कहती लेकिन अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा। That would be very ungrateful of him, they said. तो उसकी बहनें कहती हैं कि ये उसकी अनग्रेटफुलनेस है। अनग्रेटफुल का क्या मतलब है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटफुल। और कृतज्ञ का उल्टा जिसको आप बोलते हैं कृतघ्न, तो वो आपका अनग्रेटफुल होगा क्योंकि हमने उसको सोने का पिंजरा दिया, खाने को अच्छा आइटम दिया, फिर वो नहीं खा रहा, तो ये उसकी गलती है। ये उसकी बहनें उसको समझाती हैं। He must know that you are only liking of his own good. और वो कहती है कि उसको इस बात को समझना चाहिए कि तुम उसके भले के लिए कर रही हो। If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. अब उसको क्या कहती है कि अगर वो इसी तरह से अपनी बात पे अड़ा रहता है और मर जाता है तो ये उसके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बाकी उसकी 8 सिस्टर्स हैं वो इससे जल रही हैं। क्यों जल रही हैं? कि उनके पेरेंट्स जो है सिर्फ 2 ही चीज़ें बोल पाते हैं। क्या बोल पाते हैं? प्रिटी पॉली और गॉड सेव द किंग, जिसको सुन के किंग भी उस दिन कह दिए थे कि ये क्या हमेशा बोलते रहते हैं और क्या इनको सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रिंसेस सितंबर का जो बर्ड है वो अच्छा गाना गाता है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। तो वो क्या करें, एक जलन, एक ईर्ष्या की भावना से वो चाह रहे हैं कि प्रिंसेस सितंबर उसको पिंजरे में बंद कर दे, वो मर जाए, वो चला जाए या गाना ना गाए, यही वो चाह रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि कोई चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो दूसरे का भी सामान खराब कर दिया जाए। ऐसा इसकी 8 बहनें हैं। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब सितंबर जो थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कैसे ये सब ठीक होगा, लेकिन अब हुआ क्या, वो 8 और ये अकेली, वो 8 बहनें और एक तरफ ये अकेली, और वो सभी इससे क्या हैं, ओल्डर, बड़ी हैं, तो बेचारी कुछ नहीं कहती। Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow, she said. और मन ही मन कहती है शायद वो कल तक इस पिंजरे का आदी भी हो जाए। And next day when she woke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. अब अगली सुबह यानी एक दिन और बीत गया। अगली सुबह प्रिंसेस सितंबर उठ करके बड़ी खुश मिजाज आवाज़ में आवाज़ लगाती है गुड मॉर्निंग, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। She jumped out of the bed and ran to the cage. अब जल्दी से वो उठती है और दौड़ कर केज के पास पहुंचती है। She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom of his side with his eyes closed and he looked as if he were dead. अब जैसे ही उस केज को देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो लिटिल बर्ड है वो नीचे पिंजरे में गिरा हुआ है एट द बॉटम, और उसके बगल में ऑफिस साइड जिस तरफ वो प्रिंसेस खड़ी है उसी साइड वो गिरा पड़ा है और आंखें बंद है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मर गया है। She opened the door and putting her hand in lifted him out
She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was still beating still. अब वो उसको निकाल लेती है और खिड़की की तरफ से हाथ बढ़ाती है जैसे कि उसको आज़ाद करने वाली है, लेकिन तभी अचानक से थोड़ा सा राहत की सांस लेती है, क्योंकि जैसे ही वो हाथ में उठाती है तो उस बर्ड का छोटा सा जो दिल है वो धड़क रहा होता है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, वो कहती है उठ जाओ मेरे छोटी चिड़िया। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड, रोने लगती है, उसकी एक आंसू उस छोटी चिड़िया के ऊपर गिरता है। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. उसकी आंखें खुलती तो वो देखता है कि आसपास पिंजड़े की सलाखें नहीं हैं। I cannot sing unless I'm free, and if I cannot sing, I die, he said. वो कहता है कि मैं जब तक आज़ाद नहीं घूमूंगा तब तक मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, और अगर मैं गाना नहीं गा पाऊंगा तो मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, प्रिंसेस जोर से सिसकियाँ भरती है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, वो कहती है ठीक है तो जाओ अपनी आज़ादी जी लो। I shut you in the golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. अब वो उसको बताती कि मैंने उस सुनहरी केज में तुम्हें इसलिए बंद किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। But I never knew it would kill you. मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये तुम्हारी जान ले लेगा। I love you enough to let you be happy in your own way. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें मैं आज़ाद छोड़ी कि जाओ तुम जिस प्रकार से जीना चाहो तुम उस प्रकार से जियो। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. उसने खिड़की के पल्ले खोल दिए और उसको विंडो स्टिल पर रख दिया। विंडो स्टिल क्या होता है? जो विंडोज़ पे बेटा लाइन बनी होती है, लोहे की सरियाएँ, उस पर उसको रख देती है। उसके बाद वो अपने आप को एक बार बर्ड जो है हिलाता है जैसे कि अंगड़ाई ले रहा हो, ग्रर। कम ऑन एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, वो कहती है ठीक है जब तुम्हारी इच्छा हो तुम आना, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम चले जाना। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं आज के बाद तुम्हें कभी पिंजड़े में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, वो सेड द बर्ड, बर्ड भी कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा प्रिंसेस, क्योंकि मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार है। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और जब मैं आऊँगा तो मैं अपने सबसे मधुर संगीत में तुम्हें गाने सुनाऊँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। वो कहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर उड़ करके जाऊँगा लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं भूल नहीं सकता। He gave himself another shake, और उसके बाद उसने अपने आप को एक और झटका दिया। गुड ग्रेसियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, और उसके बाद वो कहता है गुड ग्रेसियस। ये गुड ग्रेसियस क्या है बेटा? जैसे हम लोग भी जब अंगड़ाई लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं हे भगवान, अरे राम राम राम, जस्ट लाइक दैट, गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस मी, कितना अकड़ गया हूँ मैं। Then he opened his wings and flew right away into the blue, और उसके बाद वो अपने पंख फैलाता है और उस नीले आसमान में उड़ जाता है। यहाँ द ब्लू का मतलब क्या है? द स्काई। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन इधर वो जो छोटी प्रिंसेस है वो आंसू उसके निकल आते हैं। पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द प्रिंसेस ऑफ समवन you love before your own, and with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दूँ। कहना बहुत आसान है पर जब किया जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पर बहुत तकलीफ़दायक होती है। अब वहाँ पे ये जो छोटी प्रिंसेस है वो बड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने से उसका बर्ड चला गया है और वो अब अपने आप को बहुत बहुत अकेला महसूस कर रही है।
When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. अब जब उसकी बहनों को पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब तुम्हारा बर्ड कभी नहीं आएगा. वो उसको मजाक उड़ा रही है, अरे तुम्हें उसने बुद्धू बना दिया, वो उड़ गया, तुमने उसको छोड़ दिया, तुम बेवकूफ़, एंड सो ऑन. बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन ऐसा हुआ कि वो वापस आया. And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आया क्योंकि उसने वादा किया था. प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कंधे पे बैठता, उसके हाथ से खाता और उसको ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाता जो उसने उड़ते समय ऊपर नीचे दुनिया के कोने कोने में घूमकर उसने सीखे थे. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. So she grew extremely beautiful. और उसके बाद से प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है अपनी विंडो दिन रात हमेशा खुला रखती थी ताकि जब कभी भी उस चिड़िया का मन हो वो वापस आ जाए. और ये उसके लिए भी अच्छा हुआ क्योंकि अब वो बहुत बहुत खूबसूरत हो गई. कैसे खूबसूरत हो गई? कहते हैं अगर ताज़ी हवा मिले, धूप मिले तो आदमी क्या होता है? हेल्दी होता है. और जो आदमी हेल्दी होता है वो खुद ब खुद ब्यूटीफुल दिखने लगता है. एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड. उसके बाद जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर बड़ी हुई तो उसकी शादी कंबोडिया के किंग से हुई और उसके जो शादी हुई उस शादी में उसकी भव्यता को दिखाने के लिए दिखाया गया है सफ़ेद हाथी पे उसको ले जाया गया. सफ़ेद हाथी बहुत कीमती होता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, यानी ये उसकी बारात की भव्यता को दिखा रहा है. तो वहाँ उसको सफ़ेद हाथी पे ले जाया गया. बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, so they grew extremely ugly as well as disagreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and Siamese cat. लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी बहनें हमेशा इस भय में रहती थी कि उनका जो पैरेट है वो कहीं उड़ ना जाए. वो हमेशा दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखती, तो कभी उनका सनलाइट से फ्रेश एयर से नाता ही नहीं हुआ, तो वो क्या हुई? अगली हो गई, यानी कुरूप हो गई. एज वेल एज डिसअग्रीएबल, लोग उनकी बात मानते ही नहीं थे. एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आया तो उनको किंग्स के काउंसिलर यानी मिनिस्टर से उनकी शादी हुई. उनकी किसी राजा महाराजा से शादी नहीं हुई. जैसे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी एक राजा से हुई कंबोडिया की, तो इनकी शादी भी किसी न किसी राजा से होनी चाहिए थी, पर इनकी शादी किससे हुई? मिनिस्टर से हुई. क्यों? क्योंकि दिखने में बिल्कुल कुरूप हो गई, भद्दी हो गई, तो कोई भी किंग इनसे शादी करने को तैयार नहीं था. और किंग्स काउंसिलर से शादी हुई वो भी ऐसे नहीं हुई, विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट. जब उनको दहेज दिया गया तब जाके उनकी शादियाँ हुई. यहाँ पे ये पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट ये उस समय का, उस राज्य का एक तरह का, जैसे आज की डेट में दहेज के रूप में लोग कहते हैं क्या, पैसा है, गाड़ी है, घर का सामान है. लेकिन उस समय में दहेज के रूप में क्या चलता था? टी और सियामीज कैट. तो उनका दहेज देकर के उनकी शादी करवाई गई. तो इस प्रकार से हम आज अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिएगा. अगली मुलाकात में हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स देंगे. टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे एट होम, बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे.